Good morning, students. I hope you all are very well. So, today we will learn about chapter number 15, our environment. First of all, we will discuss about introduction. We have the word environment often being used on the television, in the newspapers, and by people around us. Environment is the sum total of all external factors, substances, living things, or living beings and conditions that surround an organism and influence the same without becoming its part. It consists of both living and non living components, each of which has several subcomponents which are interlinked and interdependent on each other. In this chapter, we shall be studying how various factors in the environment interact with each other and how we impact the environment. First sub-concept of the chapter, you think what happens when we add our waste to the environment. First, human activities produce a lot of waste materials which are thrown away into the environment. So these waste cause pollution of air, water, and soil. The waste materials produced are of two main types. They are biodegradable wastes and non-biodegradable wastes. First of all, biodegradable wastes. These are waste which are decomposed into harmless substances by microorganisms, for example, vegetables, fruits, pulses, seals, cotton, jute, wool, wood, leather, paper, animal dung, animal bones, etc. And second, non-biodegradable waste. These are waste which are not decomposed by microorganisms. For example, polythene bags, plastic, synthetic fibers, glass, metal, synthetic rubber, insecticides, pesticides, etc. अब आपको ये तो समझ में आ गया कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में डिफरेंस क्या है। उसमें क्या हो जाता है, डीकम्पोज हो जाते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म्स बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल में डीकम्पोज नहीं होते हैं। सब कंसेप्ट इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स क्या है। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है। An ecosystem consists of all living organisms in an area along with the non-living components and their interactions. There are different types of ecosystems. First is natural ecosystem like forest, deserts, grasslands, mountains, ponds, lakes, rivers, oceans, etc. Second is artificial ecosystem like gardens, parks, crops, fields, aquarium, zoo, etc. Components of ecosystem. An ecosystem consists of two main components. They are biotic and abiotic components. These components are already learned in previous classes. Biotic and abiotic components. Biotic components are the living components are like plants, animals, and microorganisms. They consist of producers, consumers, and decomposers. से कहाँ से consist किए जाते हैं? प्रोड्यूसर से, फिर कंज्यूमर आता है, देन डीकम्पोजर हो जाते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या काम करते हैं? आर ग्रीन प्लांट्स विच प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना जो फूड है ग्रीन प्लांट्स खुद प्रिपेयर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एक एनर्जी। उसके बाद आते हैं हमारे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या करेंगे? कंज्यूमर मीन्स कंज्यूम करना। जो एनर्जी प्लांट्स ने प्रोड्यूस की है उसे कौन कंज्यूम करेगा? हार्बीवोरस विच गेट देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। हार्बीवोरस जो होते हैं वो क्या करते हैं? डायरेक्टली प्लांट से अपना फूड जो है वो ले लेते हैं। कार्निवोरस का विच गेट देयर फूड इन डायरेक्ट। हार्बीवोरस में आ जाते हैं जैसे इंसेक्ट्स, ठीक है। इंसेक्ट्स डायरेक्टली प्लांट से ले लेते हैं फूड। और उसके बाद आते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस में आ जाते हैं हमारे पास फ्रॉग। जैसे फ्रॉग क्या करता है? वो डायरेक्टली प्लांट्स नहीं खाता, वो इंसेक्ट्स को खाता है। अब फ्रॉग को खाने के लिए कौन है? स्नेक है। स्नेक क्या करता है? वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड जो है वो कहीं से भी प्लांट से क्या करता है? ले लेता है। ये जो है हमारे पास कंज्यूमर्स है, ये सारे क्या है? एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। कोई किसी एक भी और स्नेक को खाने के लिए ईगल है। ये सारे क्या आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। ये देखिए जैसे सनलाइट से प्लांट्स ने एनर्जी ली, प्लांट की एनर्जी इंसेक्ट्स ने ली, इंसेक्ट्स की एनर्जी फ्रॉग ने ली, फ्रॉग की एनर्जी स्नेक ने ली, स्नेक की एनर्जी ईगल ने ली। थर्ड कंपोनेंट है डीकम्पोजर। दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
which decompose dead plants and animals. They decompose complex organic substances into simple inorganic substances in the soil, which are again used by plant. मतलब ये वो वाले डीकम्पोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं डेड प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं उन्हें डीकम्पोज कर देते हैं. मतलब जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो उसे एक सिंपल फॉर्म में बना देते हैं जो दोबारा जो है सॉइल में दोबारा मिक्स हो जाते हैं एंड देन प्लांट्स की थ्रू दोबारा यूज़ किए जा सकते हैं. उन्हें बोलते हैं डीकम्पोजर्स. नेक्स्ट है अबायोटिक कंपोनेंट. अबायोटिक कंपोनेंट these are the non-living components like air, water, soil, minerals, sunlight, temperature, wind, etc. बायोटिक में कौन से आ जाते हैं लिविंग कंपोनेंट्स. अबायोटिक में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं आ जाते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास फूड चेन. फूड चेन यू ऑलरेडी लर्न अबाउट इन प्रीवियस क्लासेस. A food chain is the flow of food energy from one generation to the next and to the next and so on. So they usually start with the producer. स्टार्ट कहाँ से होती है प्रोड्यूसर से मतलब प्लांट से स्टार्ट है एंड देन एंड विद कहाँ से हो जाती है कार्निवोर से ख़त्म हो जाती है. इन अ फूड चेन एंड ऑर्गेनिज्म गेट्स फूड फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. लाइक एग्जांपल है ग्रास प्रोड्यूसर है, डियर कंज्यूमर है, डियर के बाद लॉइन भी एक कंज्यूमर है. देन दूसरा ग्रास अकेला ग्रास को डियर नहीं लेता, इंसेक्ट्स भी लेते हैं. इंसेक्ट्स के बाद फ्रॉग आ जाता है, फ्रॉग के बाद स्नेक. इसी तरह ग्रास में और मौत से फ्रॉग से स्नेक से आगे हॉक. ये सभी जो है कंज्यूमर प्रोड्यूसर हैं. ऐसे ही अभी एक और एग्जांपल दिखाई जा रही है आपको ग्रास की. इट्स फूड चेन कैसे बनती है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर कौन है डीकम्पोजर कौन. सेकंड है हमारे पास फूड वेब. अभी जो हमने पढ़ा वो फूड चेन थी, अब जो पढ़ रहे हैं वो है फूड वेब. Food web is a group of several interconnected food chains. In a food web, organisms get food from more than one group of organisms. इसमें क्या होता है कि फूड चेन में क्या है कि एक प्रोड्यूसर है, दूसरे कंज्यूम कर ली, कंज्यूम के बाद डिकम्पोजर है. फूड वेब में क्या होता है इसमें इंटरकनेक्टेड होते हैं. कौन सी फूड चेन्स जो डिफरेंट फूड चेन्स है वो सारी आपस में क्या होती है इंटरकनेक्टेड होती है. जब सेवरल फूड चेन्स आपस में एक इंटरकनेक्टेड चेन बना देते हैं उसे बोलते हैं एक फूड वेब. लाइक जैसे प्लांट से उन्होंने एनर्जी ली, ग्रास होपर ने ली, जैसे ग्रास होपर ने ली है, रैट ने ली है, बटरफ्लाई ने ली है और बटरफ्लाई से एनर्जी एक जो है बर्ड ने ले ली, बर्ड से स्नेक ने ले ली. देन फ्रॉग से ली गई है एनर्जी स्नेक के थ्रू. ठीक है, हाउस फ्लाई की वजह से बर्ड से ली गई, बर्ड से आगे जो है एक स्नेक में चलेगी, जैसे फ्रॉग को एक कैट ने खा लिया. जैसे एनर्जी जो है अलग अलग फूड चेन्स जो हैं वो एक फूड वेब बनाती हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो है हमारे पास ट्रॉपिक लेवल. Trophic levels, each step in a food chain where transfer of food energy takes place is called trophic level. जब कोई भी फूड चेन का ईच स्टेप जो है वो ट्रांसफ़र क्या करते हैं अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, उसे क्या बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल. द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर. सबसे पहले कौन सा ट्रॉफिक लेवल में आता है प्रोड्यूसर्स, क्योंकि प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने ही एनर्जी पहले लेनी है. देन प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स में जाएगी, कंज्यूमर से डीकम्पोजर में चली जाएगी, एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो जाती है. देन द सेकेंड लेवल कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर. जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनके पास जाएगी. थर्ड ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर. जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं उनके पास जाएगी. फर्स्ट जो है जो प्रोड्यूस करते हैं, सेकंड ट्रॉफिक लेवल में क्या आएगी प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड में सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे. देन द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल कंसिस्ट ऑफ टर्शियरी कंज्यूमर्स. सिंस द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी डिक्रीजेज एट एवरी ट्रॉपिक लेवल. जो फूड की एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ना वो हर एक लेवल पे क्या है उसकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी डिक्रीज़ होती जाती है. द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स आर लिमिटेड हैं एंड डू नॉट एक्सीड 4 और 5. हम ये नहीं कर सकते कि ये फोर्थ कंज्यूमर्स है, ये फिफ्थ टाइप के कंज्यूमर्स हैं. ओनली सिर्फ 3 टाइप्स जो है, पहले प्रोड्यूसर्स आएंगे, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स है, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, लास्ट है टर्शियरी कंज्यूमर्स. इसके ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते क्योंकि एनर्जी जो है वो फूड की कम होती जाती है आगे आगे जब ट्रांसफ़र होती है. जैसे कि
इसमें देखो जैसे प्रोड्यूसर है उसमें एनर्जी लेवल हाई है, द प्राइमरी कंज्यूमर में गया, सेकेंडरी में गया, टर्शियरी में, उसमें जाते जाते एनर्जी का लेवल जो है वो बिल्कुल लो हो गया, कम हो गया। और प्रोड्यूसर की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है, देन प्राइमरी की थोड़ी कम, सेकेंडरी की उससे थोड़ी कम, एंड टर्शियरी की सबसे ज़्यादा कम हो जाती है। ऐसे ही मैंने एक यहाँ पे और दिखाया गया है आपको। और नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी फ्लो एंड ट्रॉफिक लेवल। एनर्जी कैसे फ्लो करती है इन, आपने हमने बोला ना पहले, प्राइमरी प्रोड्यूसर से आती है, प्रोड्यूसर से प्राइमरी में, प्राइमरी से सेकेंडरी में, सेकेंडरी से टर्शरी में जाएगी, कि कैसे फ्लो करती है। ग्रीन प्लांट्स मतलब प्रोड्यूसर्स हैं, एब्जॉर्ब अबाउट 1% ऑफ सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन द लीव्स, एंड देन स्टोर इट एज फूड एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं एज ए फोटोसिंथेसिस के टाइम में वो एनर्जी को क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। सिर्फ 1% ऑफ सोलर एनर्जी जो फॉल हो रही है उससे वो अपनी एनर्जी जो है फूड अपना जो प्रिपेयर करते हैं उससे उन्हें एनर्जी मिलती है ग्रो करने के लिए। एंड देन उसके बाद क्या होता है, ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम one trophic level or to the next, and 90% of the energy is lost to the environment and only 10% is transferred to the next trophic level. इसमें क्या होता है, प्राइमरी में तो हमने कहा कि उसने अपनी एनर्जी 1% सोलर एनर्जी लेके उसमें से अपनी पूरी जो फूड है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से उसने एनर्जी प्रोड्यूस कर दी। अब वो एनर्जी अगले में ट्रांसफ़र होगी, प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगी। जब प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगी तो क्या कह रहा है, 90% ऑफ एनर्जी इज़ लॉस्ट टू द इन्वायरमेंट एंड ओनली 10% ही ट्रांसफ़र हो पाएगी टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। उसमें 10% के उससे आगे के ऐसे जो है ट्रांसफ़र होती है। So there is a decrease in the amount of food energy transfer at every trophic level by 10%। हर एक ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होती रहती है, फूड की जो एनर्जी है ना वो 10% बाई 10% डिक्रीज़ होएगा। सो दिस इज़ नोन एज द 10% लॉ। इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है 10% लॉ कि डिक्रीज़ ऑफ 10, क्योंकि 10% हर बार हर एक लेवल पे 10% आके कम हो जाएगी। जो प्लांट्स है उसने तो 100% की, लेकिन आगे जो प्राइमरी कंज्यूमर के पास गई वो 10% रह 10% कम हो गई। ऐसे ही सेकेंडरी में गई 10% और कम हो गई, टर्शियरी में गई और 10% हो। ऐसे क्या फूड ऑफ एनर्जी जो है उसकी कम होती रहती है। जैसे इसमें देखो प्रोड्यूसर्स जो हैं प्लांट्स, उन्होंने 1000 कैलोरीज जो है प्रोड्यूस की। प्राइमरी कंज्यूमर के पास 100 कैलोरीज रहेगी, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 10 कैलोरीज रहेगी, टर्शियरी कंज्यूमर के पास 1 कैलोरी। मतलब एनर्जी जो है उसका लेवल कम होता जाता है जब वो ट्रॉपिक लेवल में आगे आगे बढ़ते रहती हैं। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। हार्मफुल केमिकल्स लाइक इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स विच आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट आर ऑब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स एंड एंटर द फूड चेन। जो केमिकल्स मतलब जो हार्मफुल केमिकल्स लाइक जैसे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं क्रॉप्स को इंसेक्ट्स और पेस्ट से बचाने के लिए, ये सारे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स एब्जॉर्ब कौन कर लेता है, प्लांट्स कर लेता है। वो क्या एक फूड चेन में एंटर प्लांट्स से, क्योंकि हमें पता है आपने अभी पढ़ा है कि फूड चेन और फूड वेब में कैसे जो ट्रॉपिक लेवल्स भी पढ़े आपने कि कैसे प्रोड्यूसर है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। सो एनर्जी जो है फूड की एनर्जी है वो क्या ट्रांसफ़र हो जाती है। प्लांट्स ने अगर इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स हार्मफुल केमिकल्स एब्जॉर्ब किए हैं, इट मीन्स वो प्राइमरी में भी जाएंगे, सेकेंडरी में भी जाएंगे और टर्शियरी में भी जाएंगे। सो सिंस दीज केमिकल्स आर non biodegradable, they get accumulated at every tropic level and their concentration increases since human beings occupy the highest tropic level. The concentration of these harmful chemicals is maximum in our bodies. स्टार्टिंग में हमने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पढ़ा था। उसमें बायोडिग्रेडेबल में क्या था, जो डिकम्पोज हो जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल में जो डिकम्पोज नहीं होते माइक्रोऑर्गेनिज्म। और ये देखो इसमें क्या है कि केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं क्रॉप्स को पेस्ट इंसेक्ट्स और पेस्ट से बचाने के लिए, लेकिन ये जो थोड़े हार्मफुल भी होते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो है ये यही हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं उन्हें अब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ट्रांसफ़र हो जाते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी में और प्राइमरी से सेकेंडरी में, सेकेंडरी से टर्शियरी में चले जाएंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि वो हम ह्यूमन बॉडीज़ के लिए भी हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स
concentration of harmful chemicals in the body of organisms at high trophic levels is called biological magnification. इसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, क्योंकि ये इनडायरेक्टली जो है ह्यूमन हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं ह्यूमन की बॉडी में एंटर कर जाते हैं। वो डायरेक्टली नहीं करते, इनडायरेक्टली करते हैं, क्योंकि ये केमिकल्स हम यूज़ करते हैं क्रॉप्स को इंसेक्ट्स और पेट्स से बचाने के लिए, लेकिन प्लांट्स भी इन केमिकल्स को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब उससे वो जब अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसी टाइम वो गया था उसको अपने अंदर ले लेते हैं। सो ये क्या है कि एक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो जाती है। जैसे कि अभी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो फूड चेन, इसमें क्या है कि प्लांट्स में जो है उनमें ही जो केमिकल्स का इफेक्ट है वो उनको थोड़ा कम रहता है, लो लेवल पे होता है। प्लांट्स को अगर एनिमल्स खाएंगे, एनिमल से हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, इस पर क्या होता है इनका जो हार्मफुल इफेक्ट है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो जाता है ह्यूमन बॉडीज़ के लिए। इसमें उल्टा है थोड़ा, क्योंकि अपने अभी पीछे पढ़ा था कि जब जो फूड एनर्जी है ट्रांसफ़र होती है प्रोड्यूसर से प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी में, वो क्या है 10% कम होती रहती है, लो हो जाती है। मतलब ट्रांसफ़र ऑफ फूड, जो फूड ट्रांसफ़र एनर्जी जो ट्रांसफ़र हुई है वो लेवल उसका कम हो जाए। लेकिन जब हम केमिकल्स की बात करते हैं, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, अगर ह्यूमन बींग्स में लिए जाते हैं तो उसका लेवल जो है वो प्लांट्स के लिए कम है और ह्यूमन बींग्स पे हाई हो जाता है। ये जब ह्यूमन बींग से हाई हो जाता है इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये बायोलॉजिकली मैग्निफिकेशन थोड़ा फूड चेन के थ्रू हो रही है। फूड चेन कैसे, क्योंकि हमने जो प्लांट्स हैं उन्हीं से हमने अपना फूड लेना है। सो प्लांट से जब हम फूड्स लेंगे तो प्लांट्स को हमने पहले ही इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड से केमिकल्स लगा के उन्हें बचाने की कोशिश की, बट लेकिन वो क्या है वो उन्हें भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन दैट्स ऑल, दिस इज़ your half chapter is completed. In next video further I continue. Thank you, have a great fun.